Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. तो जो पोलन ट्यूब होता है वो ग्रो करता है स्टिग्मा के टिश्यूज के थ्रू, स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के थ्रू और रीच करता है ओवरी. You would recall that in some plants pollen grains are shed at 2 cell stage. अभी पीछे हमने पढ़ा था कि कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो 2 सेल स्टेज पे ग्रो करते हैं, शेड करते हैं. 2 cell condition, a vegetative cell and a generative cell. In such plants, the generative cell divides and form the 2 male gametes. इन प्लांट्स के केस में जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है और फॉर्म करता है 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा and forms the 2 male gametes during the growth of pollen tube. जब pollen tube grow हो रहा होता है तब 2 male gametes फॉर्म होते हैं स्टिग्मा में, जब वो स्टिग्मा में ग्रोथ हो रही होती है. इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द 3 सेल कंडीशन, जिस केस में 3 सेल कंडीशन पे शेड करता है, पोलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग. इस केस में बिगनिंग से ही 2 मेल गैमेट्स को कैरी किया जाता है 3 सेल वाले केस में. पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पोलन ट्यूब की बात हो रही है, जब पोलन ट्यूब ओवरी के पास पहुंच जाता है, enters the ovule through the micropyle and then enter one of the synergids. ओव्यूल में एंटर करेगा थ्रू माइक्रोपाइल और फिर एंटर कर जाएगा वन ऑफ द सिनर्जिड्स में थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part, filiform apparatus जो कि micropylar part में present होता है of the synergid guides the entry of pollen tube. ये शायद हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री के लिए, ठीक है. ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. जब हमारा जो पोलन ग्रेन था, जब वो स्टिग्मा पे लैंड हुआ था, तब से लेके प्रोसेस को, जब तक जो पोलन ट्यूब ने ओव्यूल में एंट्री की, तब से लेके तब तक जो हमारा प्रोसेस है उसे हमने क्या बोला, उसको रेफर करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process. ये एक डायनामिक प्रोसेस है involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. Involving the pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen, the knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction, even in incompatible pollination, to get desired hybrids. तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि कुछ पोलन कॉम्पैक्टेबल होते हैं, कुछ इनकम्पैटिबल होते हैं, तो नहीं तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर वो सही होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. लेकिन डिज़ायर्ड हाइब्रिड्स पाने के लिए जो हमारे प्लांट ब्रीडर्स हैं, वो जो इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन होते हैं हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें डिज़ायर्ड हाइब्रिड मिल सके, है ना. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as peach, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution, about 10%, after about 15 to 30 minutes. Observe the slide under a low power lens of the microscope.
you are likely to see pollen tube coming out of the pollen grain. अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पोलन ट्यूब्स दिखेंगे पोलन ग्रेन में से बाहर आते हुए, ठीक है. A breeder is interested in crossing different species, right? Different species को हम क्रॉस करवाते हैं. And often genera to combine desirable character, जिससे कि हमें desirable character मिल सके, to produce commercially superior varieties, और फिर हम उसको commercially use कर सके बेचने के लिए. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. तो जो हमें ये क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, हमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें जो पोलन ग्रेन यूज़ करवाना है पॉलिनेशन के लिए, जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन हमें यूज़ करवाना है पॉलिनेशन के लिए, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा स्टिग्मा है उस पर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके ना चिपक जाए, जो हम पोलन ग्रेन नहीं चाहते वो आके चिपक जाए, ठीक है. तो हमें उसे कॉन्टैमिनेशन से बचाना होता है स्टिग्मा को, यानी कि कॉन्टैमिनेशन मतलब कि हमें उसे अनवांटेड पोलन से बचाना होता है. तो ये अभी हम कैसे करेंगे? दिस इज़ अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स. If the female parent bears bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence using a pair of forceps is necessary. If the female parent अगर फीमेल पेरेंट में bisexual flowers हैं तो रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिसेंस यूज, तो उसमें क्या किया जाता है? एंथर्स की डेहिसेंस होने से पहले हम क्या करते हैं? फोरसेप्स होता है ना, वो सीजर लाइक जो एक टूल होता है, उसकी मदद से रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ, तो हम क्या करते हैं? डेहिसेंस होने से पहले हम एंथर को रिमूव कर देते हैं फोरसेप्स की मदद से, जिससे कि वो डेहिसेंस ना हो सके. दिस स्टेप इज़ रिफर्ड एज इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज. जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं जिसमें से हमने एंथर को रिमूव कर दिया है, उसको फिर हम एक बैग से कवर कर देते हैं, सुटेबल साइज की बैग से, जो कि जनरली किस चीज़ से बना होता है? बटर पेपर से, ठीक है. टू प्रिवेंट कॉन्टैमिनेशन, कि जिससे कॉन्टैमिनेशन ना हो स्टिग्मा का अनवांटेड पोलन से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स receptivity, mature pollen grains collected from anther of the male parent are dusted on the stigma and flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. जैसे ही हमारा स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिविटी अटेन कर लेगा, मतलब कि वो जो हमारा स्टिग्मा है वो उतना मैच्योर हो जाएगा कि अब वो फर्टिलाइजेशन कर सके, तो क्या करते हैं? जो मैच्योर पोलन होता है, जो हमें यूज़ करना होता है डिज़ायर्ड पोलन, मैच्योर पोलन, एंथर से कलेक्ट करके मेल पेरेंट्स से हम उसको स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हैं, और फिर और जो हमने बैग कर रखा होता है उसको रीबैग कर देते हैं, उसको हटा देते हैं बैग को, और फ्रूट्स को हम डेवलप होने देते हैं. इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस ये केस था हमारा बाइसेक्सुअल के लिए. अब इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन. ओके, द फीमेल फ्लावर्स, इसमें इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की नीड नहीं होती है. इफ़ द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन्स, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर फ्लावर ओपन्स. फ्लावर के ओपन होने से पहले ही
हम उसके बर्ड्स को बैग्ड कर देते हैं। When the stigma receptive becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower is rebagged। फिर जैसे ही हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, पॉलिनेशन करवा दी जाएगी और उसको रीबैग कर दिया जाएगा। ठीक है, इस केस में सिर्फ बैगिंग होती है। राइट नाउ डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जैसे अभी अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। जैसे ही जो हमारा पोलन ट्यूब सिनर्जिड में एंटर होगा, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, पोलन ट्यूब रिलीज करेगा 2 मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द एग सेल। दो मेल गैमीट्स हैं, उसमें से एक क्या करेगा, वो हमारे एग सेल के पास चला जाएगा। एग सेल कौन है, ये इसी के साथ हमारी फर्टिलाइजेशन होगी, इसी से हमारा जाइगोट बनेगा, इसी से हमारा बेबी प्लांट बनेगा। जो हमने प्रोसेसेस की है, इसी फर्टिलाइजेशन की मदद से की है, इसी एग सेल के साथ हमारी जो मेन फर्टिलाइजेशन है वो होगी। तो उसमें से एक मेल गैमीट तो हमारे मेन एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा विद इट्स न्यूक्लियस, thus completing the syngamy यानी कि fertilization। This result in the formation of a diploid cell, the zygote। हमारा zygote बना देगा जो कि एक diploid cell होता है। और फिर ये तो हो गया। अब जो एक दूसरा हमारा मेल गैमीट बचा था उसका क्या करें अब, तो ये क्या करता है, the other male gamete move towards 2 polar nuclei। इसको दो मिल जाते हैं, इसको 2 पोलर न्यूक्लियाई मिल जाएंगे जो कि लोकेटेड होता है सेंट्रल सेल में, और वो उसके साथ फ्यूज कर जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे PEN भी कह सकते हैं। इन as this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion। इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, एक यहाँ पे इस केस में, एक इस केस में एग सेल के साथ, एक इधर हुआ था, और फिर जो हमारा दूसरा मेल था उसने इन दोनों के साथ किया था, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो 2 पोलर न्यूक्लियस, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुई है, इसलिए हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, syngamy and triple fusion takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization। 2 टाइप के फ्यूजन हुए, syngamy हुई और ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ एम्ब्रियो सैक में, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो हमारा द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, जो सेंट्रल सेल था आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन becomes primary endosperm cell, PEC। सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमारा PEC बन जाता है और वो क्या बन जाता है, डेवलप इनटू अ एंडोस्पर्म, while zygote develops into an embryo। ठीक है, जो हमारा दूसरा मेल गैमीट था ना जिसने फ्यूज किया था 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वो बन जाएगा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ट्रिपल फ्यूजन हुई थी ना, ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो बन जाएगा हमारा PEC, और फिर वो डेवलप कर जाएगा एंडोस्पर्म में। ठीक है, एंडोस्पर्म में, और जो हमारा जाइगोट डेवलप हुआ था वो हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है,
अब